Hi everyone, and hope you all are doing good. As we have entered into the month of September, तो थोड़ा सा डर बढ़ेगा and you will start fearing about the paper and time management का issues है. But believe me, these things are very normal because syllabus is very vast. So don't expect in UPSC कि आप अपने अकॉर्डिंग और स्मूथली सब कुछ कवर होगा. नो, इट्स नॉट पॉसिबल. और उससे ज्यादा यू आर इन ए पोजिशन की आपको पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है, तो ऑब्वियसली आपको पढ़ना ज्यादा है, टाइम कम है, तो यू वोंट बी एबल टू मैनेज एवरीथिंग. बट हमें कंसिस्टेंटली अपने परफॉर्मेंस को बना के रखना है so that we are not going to lose. I will tell you one thing, that even if you are completing 70%, 80% of the syllabus, there is not even a single reason, not even a single point where you should feel कि पेपर आपसे नहीं होगा. But that 70 to 80% should be very much like a clarity बहुत important है, तो वो होना चाहिए. Now today I would like to break some myths about the prelims examination, and this is very very important for you to please try to listen. The first important thing is regarding the prelims examination. So we always fear about the competition in UPSC, okay, and the number of seats, the final list in the UPSC. So one thing I will tell you, when you fail in prelims examination, you will just keep on saying we have very less number of seats, 700, 800 in the end. So we are not able to qualify, and competition is very tough and the exam is very tough. But I will tell you one thing, you are in the first stage of the UPSC, and in the very first stage of the UPSC, if you are not able to clear, please don't give this argument, because in the very first stage the number of seats are not 700, the number of seats are 14 to 15,000. okay, तो वहां पे अगर आप अपनी जगह नहीं बना पा रहे हो, तो somewhere some fault is within you. Try to find that fault. नहीं आता तो आप मेरे पास आइए, आप किसी मेंटर के पास जाइए, बट यू हैव टू फाइंड दैट फॉल्ट एंड ट्राई टू रेक्टिफाई इट एज सुन एज पॉसिबल. कहीं ना कहीं कोई कमी हो रही है, बिकॉज आई हैव सीन स्टूडेंट्स कि अगर आपका एक प्रीलिम्स का एक जो तरीका है, इफ यू गेट दैट, ओके, आप रेयरली फेल होते हो. यू विल एवरी ईयर यू विल गेट थ्रू द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, यू विल राइट द मेंस एग्जामिनेशन, बट इफ यू आर नॉट एबल टू गेट दैट पॉइंट कि कहां पे स्टक हो रहे हो, किस क्या चीज है दैट सैचुरेशन पॉइंट के बियॉन्ड जो आप नहीं पहुंच पा रहे हो, टेक द हेल्प ऑफ सम मेंटर. ओके, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट ट्राई टू कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर आप प्रीलिम्स को दीजिए, बट इफ यू आर नॉट एबल टू रेक्टिफाई द रिजॉल्व योर इश्यूज, please take help from someone, some coaching, some teachers, and try to get it through the prelims examination. So the seats for the first phase is 14-15,000, not 700 800. This is the first myth. आप पेरेंट्स को भी गुमराह करते हैं, खुद को भी ये बात कह के दिलासा देते हैं, but this is not the fact. Second important thing is regarding the practice part of the prelims examination. I will tell you, and with 100% confidence, if you are fresher and if you are really struggling with the prelims examination year after year, the most important reason for your failure will be the practice part. You are just postponing the last 3-4 months. It's not possible at all. And I'm telling you one thing, अगर आप fresher हो और आप जैसे आप कुछ पढ़ते हो, right? Suppose you read about the 42nd Amendment Act in preamble. Now you are like very happy कि आपने आज सीखा है कि सोशलिस्ट और सेक्युलर को हमने ऐड किया 42nd अमेंडमेंट पे. बट फॉर द यूपीएससी दिस स्टेटमेंट इज वेरी ओल्ड. इसका कोई रेलेवेंस नहीं है अगर आप पूछोगे सिंपल टर्म्स में, बिकॉज यूपीएससी के लिए ये स्टेटमेंट इज द इजिएस्ट. अब ये एसएससी लेवल पे हो रहा है, बट यू आर इन अ पोजिशन, बिकॉज यू आर अ फ्रेशर, यू विल फील यू हैव लर्न समथिंग, बट यू शुड नो दैट ये स्टेटमेंट के बियॉन्ड बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखने के लिए वो एग्जाम में आएगा. ये स्टेटमेंट एग्जाम में नहीं आएगा. बट जब आप स्टार्ट करते हो इन द एंड सितंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तब आप जाके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो एंड यू फील कि आपको बहुत अच्छे स्कोर्स आ रहे हैं, बट दैट इज नो रेलेवेंस इन यू फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. बिल्कुल उसका रेलेवेंस नहीं होता, ना ही आप अपने स्कोर्स को इंप्रूव करते हो. सो दैट्स वाई आप अभी से ग्रेजुअली धीरे धीरे मूव करो. आई एम नॉट आस्किंग यू कि आप मेंस एंड ऑप्शनल को छोड़ के यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. नो, एटलीस्ट 3-4 आवर्स वीकली देना स्टार्ट करो. कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए.
डेली बेसिस पे सी इन आवर गोल्ड टाइड वी आर डूइंग द अभ्यास सेशन और द न्यूज़पेपर प्रीलिम्स डॉक्यूमेंट. ये एक तरीका है कीप यू इन द लूप फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. So this is one of the most important strategy I apply on my students. I never let them go like leaving prelims examination beyond. Okay, I always keep that in loop कि आप prelims को करते रहो, थोड़ा थोड़ा करते रहो, so that prelims is always in touch. तो ये एक बहुत important point है हमारे UPSC कोर्स का. Now third important thing I would like to tell you regarding the prelims examination is कि previous year questions. Now it's very important for you to understand the most and the 90% of the use of the previous year questions is when we learn any topic or complete the syllabus or any subject. If we are able to solve the previous year questions, we feel happy, we feel confident, and we feel really kind of on track because we are, after reading the book, we were able to solve the previous year questions that has already appeared in the UPSC. तो सबसे important काम previous year का यही है कि आपको confidence देना. Okay. Now second important thing, as you already seen in the market or in your coaching, कि previous year questions को जरूर करो because last year paper जो आया वो कुछ questions previous years के भी examination में आए. Now I will tell you one thing, examiner never opened all the previous year questions and just try to frame that. उसको topics की कमी नहीं है कि वो previous year questions को देख के और उन questions को put करेगा. It's like coincidence, right? You are framing some questions and that word has already appeared in the past, like more than 70 years the paper is being framed, right? तो कुछ टॉपिक्स अगर आपको कोइंसाइड हो जा रहे हैं प्रीवियस ईयर से, तो डोंट इमेजिन और डोंट कंक्लूड कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, करंट एग्जाम में आ रहे हैं. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. सो प्लीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो रोल है उस रोल को ही वहां तक रहने दीजिए. डोंट ट्राई टू अननेसेसरी पुट एंड इम्पोज ऑन द स्टूडेंट्स कि ये आने वाला है उससे ये आने वाला है. नो, आप प्रीवियस के स्टैटिक पोर्शंस को कीजिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसको करना है, आई एम नॉट सेइंग नॉट, बट आप किसी ट्रेंड में, आप किसी पैटर्न को एज्यूम मत कीजिए नेक्स्ट ईयर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ऐसे. प्लीज ओके, आप सॉल्व करो उनको. आप देखो कि किस डेप्थ तक टॉपिक के क्वेश्चंस आते हैं. करंट अफेयर्स अगर कोई टॉपिक पूछा है, फॉर एग्जांपल MPLAD स्कीम पूछ रहे हैं या मनरेगा स्कीम पूछ रहे हैं, तो जस्ट सी द स्टेटमेंट्स कि किस स्टेटमेंट्स कहां आप उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खोलोगे, देन यू विल सी कि आप वो स्टेटमेंट्स कहां से गाइडलाइंस में पिक किया गया. तो आपको पता चलेगा जितने भी बुलेट पॉइंट्स हैं एटलीस्ट वो हमें पढ़ के जाना है, राइट? सो दैट्स व्हाट यू गेन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर. तो ये जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आएंगे एग्जामिनेशन में, इसलिए करो. दिस इज नॉट द वे. सो दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल द स्टूडेंट. एंड फॉर द मेंस, वन थिंग आई टेल यू फॉर टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर द मेंस एग्जामिनेशन इज कि आप मेंस एग्जामिनेशन, यू पीपल आर रियली डूइंग वेल, आप कर रहे हो अच्छे से. तो आप मंडे टू फ्राइडे सैटरडे पूरा अभी ध्यान ऑप्शनल पे, मेंस पे दीजिए. संडे का एक जो हाफ आवर होता है बिफोर लंच, ट्राई टू गिव ऑन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. इट्स utmost important. Just see the moment you clear everything. आप सब कुछ प्रिपेयर करते हो, ऑप्शनल, एथिक्स, ऐसे, एंड देन यू कम टू नो कि प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ. सो एग्जैक्टली देयर इज नो यूज ऑफ योर मेंस एंड ऑल. तो आपको इस तरीके से पढ़ना है कि साइमल्टेनियसली चीजें चलती रहे. यू शुड ऑल्सो बी कॉन्फिडेंट. और एग्जाम अगर प्रीलिम्स चलता रहेगा साथ में, तो आपका एक मेंटली भी आप फ्री रहोगे, रिलैक्स रहोगे कि प्रीलिम्स कुछ ना कुछ आई एम डूइंग, राइट? कंप्लीटली उसको इग्नोर होके मत कीजिए एंड मत डरिए क्वेश्चन से, बिकॉज टू क्लियर प्रीलिम्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो क्वेश्चंस का जो एक फेस करने का जो डर है उसको निकालो. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड टुडे ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स and thank you for all the wishes yesterday I received on the Teachers Day, and I wish you that everyone clear the examination next year. मुझे नहीं पसंद है कि नेक्स्ट ईयर मैं फिर से सेम स्टूडेंट से मिलूं, सेम स्टूडेंट्स को एडवाइस दूं. I want everyone to clear as soon as possible this UPSC examination. So thank you so much for today. I wish you all the best.